نقیب اہل سنت نقیب اجلاس جناب مولانا ناظم القادر صاحب قبلہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کو بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ سلام کیا۔ آپ لوگوں میں سے کچھ نے جواب دیا اور کچھ نے جواب نہیں دیا۔ دیکھیے، سلام کرنا یہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ میں آپ حضرات کو پھر سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چمنستان رضوی کے مہکتے پھولوں، شمعِ رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء اللہ کے جانثاروں، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر دونوں ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، طہ و یاسین، انیس بکساں چار سازہ درد مندہ، کونین میں سب سے انوکھے دائی حلیمہ کے جگر کے پالے، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، قابل مبارکباد ہیں صاحب خانہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں کسی دنیا دار کی محفل کو نہیں سجایا بلکہ مدینے کے تاجدار کی محفل کو سجایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک عاشق رسول کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ جب اس کے مکان پر کوئی خوشی کا پروگرام ہوتا ہے تو وہ خوشی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری نہیں کرتا ہے، خوشی کے سلسلے میں وہ کام نہیں کرتا ہے جس سے کہ مدینے والے آقا ناراض ہوں، بلکہ ایک عاشق رسول کی یہ پہچان ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی اس کو خوشی عطا فرماتا ہے اور جب وہ رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر انہی محفلوں کو سجایا کرتا ہے۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے جناب کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازے تو بندے کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی آج کے انسان کو کسی نعمت سے نواز دیتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بندے کو چاہیے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے، لیکن آپ دیکھیں کہ بچے کی ولادت کی خوشی میں بندہ کس طرح سے شیطان کو خوش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بات آگے کو بڑھاتا ہوا چلوں، اگر آپ اپنی شادی بیاہوں کا جائزہ لیں تو آپ حضرات کو پتہ چلے گا کہ 80% لوگ ایسے ہیں کہ جو شادی تو کراتے ہیں لیکن شادی کرانے میں اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی شادی کرنا یہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری سنت ہے، وہ سنت میں برکت بھی ہے، لیکن اس سنت کے اندر انسان اس قدر اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کر لیتا ہے، حرام کام کر کر، ناجائز کام کر کر، اور آپ حضرات یاد رکھیں
जिस शादी के अंदर वो काम और होता है जिन कामों से रब तबारक व तआला नाराज होता है, तो उस शादी में कभी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाज़िल नहीं हो सकती। और जिस शादी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा होता है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें बयान होती हैं, मदीने के ताजदार का जिक्र होता है, अगर उस शादी में कोई बला आने को होती भी है तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की बरकत से वो बला टल जाती है। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे पहले दुआ करता हूँ, रब तबारक व तआला इस शादी खाना को आबादी फरमाए और साहिब खाना ने जो अपने बच्चों की शादी करेंगे, मौला ताला उन शादी में खूब खूब रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, अल्लाह के फरमान को पहचान मुसलमान, अल्लाह के फरमान को पहचान मुसलमान, और महशर में होगा खुल्द का मेहमान मुसलमान। जब बंदा दुनिया में रहकर अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को पहचान लेगा, यानी रब तबारक व तआला का फरमान क्या है, तवज्जो के साथ सुने, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है और फहरिस्त भी तवील है, इसलिए कम वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि आप हजरात को ज्यादा से ज्यादा दीन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि तवज्जो के साथ सुने, जहन को करीब करने की कोशिश करें, इसलिए कि मेरे अजीजों, ये जो आप लोगों का वक्त है, आराम करने का वक्त है, सोने का वक्त है, इस वक्त में आप हजरात आराम भी कर रहे होंगे आप में से कुछ लोग, लेकिन आज की रात में आप हजरात ने अपना वक्त मदीने वाले की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया है। और याद रखें, जो इंसान मदीने वाले की मोहब्बत में अपने वक्त को कुर्बान कर देता है, तो ऐसा इंसान दुनिया का खुश नसीब बंदा माना जाता है। तो आप हजरात बहुत बड़े खुश नसीब हैं जो मदीने वाले की महफिल में बैठे हुए हैं। कहने वाले ने कहा, अल्लाह के फरमान को पहचान मुसलमान, तो महशर में होगा खुद का मेहमान मुसलमान। और गाफिल न हो यादे इलाही से किसी दम, गाफिल न हो यादे इलाही से किसी दम, हो जाएंगी सब मुश्किलें आसान मुसलमान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ लोगों, आप हज़रात इस बात को अपने ज़हन में रखें, अगर आप आज इसके दौर का ज़माना लें तो आप हज़रात को पता चल जाएगा आज का इंसान किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर रहा है। आज गुनाह करने के बाद इंसान को एहसास भी नहीं होता कि उसने गुनाह किया है या नहीं किया है। गुनाह करने के बाद इंसान अपने आप को बहादुर समझता है। आप हज़रात याद रखें, गुनाहों की वजह से इंसान का चेहरा मस्त हो जाता है, गुनाहों की वजह से इंसान की जिंदगी से रौनक खत्म हो जाती है, गुनाहों की वजह से इंसान की जिंदगी कम हो जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात से इनको करीब करने की कोशिश कीजिए और तवज्जो के साथ सुने। आप लोग इस बात को याद रखें, जो बंदा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की कोशिश करता है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है, तो आप हज़रात याद रखें, हकीकी माना में, सही माना में जन्नत का हकदार वही हुआ करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर मैं आप हज़रात से पूछूं, अगर मैं आप हज़रात से मालूम करूं क्या आप जन्नत में जाना चाहते हैं, तो यकीनन आप यही कहेंगे, जनाब हमारी तो ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है जन्नत में जाने की। अगर आप शराबी से पूछे तो वो भी यही कहेगा, हाँ हमारी भी ख्वाहिश है जन्नत में जाने की। अगर आप कितने ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो अपने वक्त का, अगर आप उससे भी मालूम करेंगे क्या जन्नत में जाना चाहते हो, तो वो भी यही कहेगा, हाँ जनाब ये तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है जन्नत में जाने की। लेकिन ऐ लोगों, मैं तुम लोगों को बताता हुआ चलो, जन्नत किस इंसान की है, जन्नत में किस तरह का इंसान जाएगा, जन्नत का हकदार कौन होगा। मचल के कहे सुभान अल्लाह। दोस्तों, खुल्द में घर बनाते चलो, दोस्तों खुल्द में घर बनाते चलो, दोस्तों खुल्द में घर बनाते चलो,
مصطفیٰ سے لگاتے چلو، ایک دن تم کو جنت بھی مل جائے گی، ایک دن تم کو جنت بھی مل جائے گی۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک دن تم کو جنت بھی، ایک دن تم کو جنت بھی مل جائے گی۔ کیسے؟ سر نمازوں میں اپنا جھکاتے چلو، سر نمازوں میں اپنا جھکاتے چلو۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ حضرات چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر جب ہم پہنچے تو سکون کے ساتھ ہماری زندگی گزر جائے، تو پھر تمہیں دنیا میں رہ کر وہ کام کرنا پڑے گا جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ تمہیں دنیا میں اندر وہ کام کرنا پڑے گا جس کام سے مدینے والے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اے لوگوں، اگر میں تم سے معلوم کروں، اگر میں تم سے پوچھوں کیا تم مدینے والے سے محبت کرتے ہو، تو یقیناً سبھی حضرات ہاتھ اٹھا دیں گے، ہاں جناب ہم بھی مدینے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر میں تم سے کہوں کیا تم مدینے والے کے نام پر جان دے سکتے ہو، تو یقیناً تم یہ بھی بات کہہ دو گے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات یاد رکھیں، پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور جو بندہ دنیا میں رہ کر نمازیں پڑھتا ہے تو ایسا انسان قبر میں سکون والی زندگی گزارتا ہے۔ جو بندہ دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرتا ہے، تو یاد رکھیں آپ حضرات، قبر کے اندر ایسا ہی بندہ، ایسا ہی انسان سکون والی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن افسوس، آج کا انسان کس قدر نادان ہو چکا ہے۔ جس انسان کو لوگ دانائی عقل مند سمجھتے ہیں، جس انسان کو لوگ سمجھدار کہتے ہیں، آج کا انسان کتنا نادان ہے۔ اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے کسی جگہ پر روم خریدنا پڑے، کمرہ خریدنا پڑے 2-4 گھنٹے کے لیے، تو انسان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اچھا سا اچھا روم مل جائے، اچھا سا اچھا کمرہ مل جائے۔ یعنی جس کمرے کے اندر بندے کو 2-4 گھنٹے گزارنے ہیں، تو بندے کی کوشش کیا ہے کہ اچھا سا اچھا کمرہ مل جائے، اس کے اندر ہر طرح کی فیسلٹی ہو، ہر طرح کی غذائیں ہو، بڑی سکون والی زندگی ہو۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں، جس کمرے کے اندر، جس ہوٹل کے اندر انسان کو چند گھنٹے گزارنے ہیں، تو انسان کی کوشش کیا ہے اچھا سا اچھا روم مل جائے۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیاوی زندگی انسان کی کتنی ہوتی ہے؟ 60 سالہ، 50 سالہ، 70 سالہ۔ حالانکہ اس دور میں آج کا انسان اتنا جی نہیں رہا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو ہی بات چلتا ہوں، اگر آج کے بندے کی زندگی مان لی جائے تو حد سے حد 80 سال تک کی ہوتی ہے۔ لیکن میرا عزیزو، یاد رکھیں اس قبر کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جس قبر کے اندر آپ کو 60 سال نہیں، آپ کو 50 سال نہیں، بلکہ صدیوں تک زندگی گزارنی ہے۔ یاد رکھیں، بندہ دنیا میں پریشان ہوتا ہے تو باپ بھی ساتھ دے دیتا ہے، بندے کے پاس میں دنیا میں پریشانی آتی ہے تو بھائی بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ ٹینشن نہ لینا ہے میرے بھائی، میں تیرے ساتھ میں ہوں، میں ہر حال میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ ماں بھی ساتھ دیتی ہے، باپ بھی ساتھ دیتا ہے، بھائی بھی ساتھ دیتا ہے، چچا تاؤ بھی ساتھ دے دیتے ہیں، پڑوسی بھی ساتھ دے دیتے ہیں۔ لیکن قبر کا معاملہ کیا میرا عزیز ہو؟ قبر کے اندر انسان کو تنہا جانا ہے اور اس کے اعمال ساتھ میں جانے ہیں۔ اب آپ حضرات یاد رکھیں، اگر بندے نے اس 60 سالہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کیا ہے تو قبر کے اندر انسان سکون والی زندگی گزارتا ہے۔ اور اگر دنیا میں رہ کر بندے نے اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کیا ہے تو ایسا انسان دنیا میں بھی خسارے میں رہتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی خسارے میں رہا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ وصیت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ حضرات یاد رکھیں، جو
जो बंदा दुनिया में रहकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता है तो ऐसा इंसान दुनिया में भी खसारे में रहता है, तो मरने के बाद भी ऐसा शख्स खसारे में रहा करता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तक आप हज़रात की जिंदगी है तो कोशिश ये करें कि हमारे किसी भी काम से अल्लाह तबारक व तआला नाराज ना हो। आज साहिब खाना ने माशाअल्लाह अपने बेटे की शादी की, और शादी के सिलसिले में आप हज़रात देखें तो सही किसी दुनियादार का जिक्र नहीं सजाया है, मदीने के ताजदार का जिक्र सजाया है। इस महफिल के अंदर किसकी बातें हो रही हैं? अल्लाह तबारक व तआला की बातें हो रही हैं, उसके महबूब की बातें हो रही हैं। और याद रखें, आप हज़रात जितने देर तक यहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोगों की नेकियों में इजाफा हो रहा है। अगर आप हज़रात सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो सुभान अल्लाह कहने का सवाब भी आप लोगों को दिया जा रहा है। आप हज़रात यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बैठने का सवाब भी आप हज़रात को मिल रहा है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे बड़ी बात मैं आप हज़रात को बताता हुआ चलूं, आप इस महफिल के अंदर बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये है आप इस महफिल में बैठे हुए हैं और आप हज़रात ने उलमा इकराम के बयानात को सुना और उन पर अमल कर लिया, तो कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। अगर आप हज़रात ने इस महफिल के अंदर बैठे हुए उलमा इकराम की बातों को तवज्जो के साथ सुना, फिर उन पर अमल किया, तो फिर ऐसे इंसान के लिए तो याद रखें आप हज़रात, वही बंदा हकीकी माना में जन्नत का हकदार है। अल्लाह के फरमान को पहचान मुसलमान, और महशर में होगा खुल्द का मेहमान मुसलमान। और गाफिल न हो यादें इलाही से किसी दम हो जाएंगी सब मुश्किलें आसान मुसलमान। और किस शान से अल्लाह ने इंसान बनाया और बख्शी है तुझे दौलत ईमान मुसलमान। अल्लाह तबारक व तआला का ये लाख लाख एहसान अज़ीम है कि उसने अपने खास फज़ल व करम से हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया और उम्मत में पैदा फरमा कर हर तरह की नेमतों से नवाजा। अगर आप हज़रात अपने जिस्म के आज़ा को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कैसी कैसी नेमतों से नवाज रखा है। लेकिन अफसोस की बात ये है बंदा नेमतों का कहाँ शुक्र अदा करता है। आप हज़रात याद रखें, जिस मदीने वाले की उम्मत में तुम पैदा किए गए हो, उस मदीने वाले की उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दुआएं की है। इसलिए बड़ी प्यारी बात कही, किस शान से अल्लाह ने इंसान बनाया और बख्शी है तुझे दौलत ईमान। नारे वसीयत मौलाना उवैस बरकाती साहब किबला, मौलाना मुकर्रम साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, खादी तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप हज़रात देख रहे हैं स्टेज की रौनकों में इजाफा हो चुका है। जनाब हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना उवैस बरकाती साहब किबला पूरी शान और शौकत के साथ स्टेज पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप हज़रात को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हज़रत का बयान समाअत करना है और थोड़ी देर के लिए आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूँ। इनके आने की अलामत मेरे जाने की अलामत है। आप हज़रात इस बात को अपने रहन में रखें। अभी मैंने आप हज़रात के सामने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। वो लोग जो अपनी गलती को सही करे, अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में बंदों से फरमा रहा है कि वो लोग जो अपनी गलती को सही करें मैं उनकी तौबा कबूल फरमाऊंगा, मैं ही बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कलाम मुक़द्दस हम लोगों को ये पैगाम दे रहा है, हम लोगों को ये बता रहा है कि बदी का रास्ता छोड़ दो, हसदखोरी का रास्ता छोड़ दो, चुगलखोरी का रास्ता छोड़ दो, ज़िनाकारी का रास्ता छोड़ दो, अय्याशबाजी का रास्ता छोड़ दो, फिरोटबाजी का रास्ता छोड़ दो और नेकियों की तरफ निकल पड़ो। नहीं तो याद रखें, जब मौत आएगी तो सिवाय अफसोस के कुछ हासिल नहीं हो सकता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम सुन्नी मुसलमान हैं। कौन है? सुन्नी मुसलमान।
मुसलमान हैं, हम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले हैं। याद रखें, हम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत तो करते हैं जनाब, हम बुजुर्गान दीन से अकीदत भी रखते हैं, लेकिन मेरे अजीज हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन हम भी बुजुर्गों से पाक की तरह अल्लाह तबारक व तआला को राजी करेंगे? वो दिन कब आएगा जिस दिन हम भी ख्वाजा खलील नवाज की तरह रब तबारक व तआला को राजी करते हुए नजर आएंगे? वो दिन कौन सा दिन होगा जिस दिन हम भी मदार पाक की तरह, वारिस पाक की तरह, साबिर पाक कलियर की तरह, हुजूर आला हजरत की तरह, मुफ्ती आजम हिंद की तरह, यानी जो हमारे असलाफ हैं उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को राजी किया है, वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन हम भी इन हजरात की तरह अल्लाह तबारक व तआला को राजी करेंगे? याद रख के आप हजरात, मोहब्बत के दावे करने तो आसान होते हैं, लेकिन मेरे भाइयों दलीलें पेश करनी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। अगर आप हजरात सही माना में सहाबा इकराम से मोहब्बत करते हैं, हकीकी माना में अंबिया इकराम से मोहब्बत करते हैं, ताबईन, तबे ताबईन, खुलफाए राशिदीन, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, औलिया कामिलीन, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करते हैं, तो वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन हम भी इन लोगों की तरह, इन हजरात की तरह अल्लाह तबारक व तआला को राजी करते नजर आएंगे? आप हजरात याद रखें, आप दुनिया में रहकर कितने ही यानी कि इनके गुण गाए और इनकी बातों पर अमल करने की कोशिश न करें, तो फिर याद रखें आप हजरात की ये मोहब्बत झूठी है। सच्ची मोहब्बत उसी को कहा जाता है जब बंदा सामने वाले का किरदार भी अपना ले, सामने वाले का अखलाक भी अपना ले। हकीकी माना में मोहब्बत इसी को कहा जाता है। और याद रखें, औलिया अल्लाह ने मदीने के ताजदार से बड़ी सच्ची मोहब्बत की है। अगर आप हजरात सहाबा इकराम की जिंदगी को उठा लें तो आपको पता चल जाएगा कि सहाबा इकराम ने प्यारे आका से कैसी मोहब्बत की है। सहाबा इकराम ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खातिर कितनी परेशानियां उठाई है। इसी तरह से आप हजरात ताबईन का जायजा लें तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपने अंदर दाखिल किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात अगर चाहते हैं कि हमसे भी अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए, हमसे भी अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाए, तो फिर हमें भी वो काम करना पड़ेगा जिस काम में रब तबारक व तआला की रज़ा होगी। हमें वो काम करना पड़ेगा जिस काम से अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हो जाएगा। और याद रखें आप हजरात, जब हम वो काम करेंगे तो फिर हमें, मुझे शायर का वो शेर याद आता है कि जन्नत का दिया हमको सामान मोहम्मद ने, और ये हमको बताई है पहचान मोहम्मद ने। जो मांगना है मांग लो, तुमको भी अता होगा, कर डाली है हर मुश्किल आसान मोहम्मद ने। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में रहकर हमें जीने का सलीका भी बताया है, रहने का सलीका भी बताया है कि किस तरह से वालिदैन का अदब करना है, एहतराम करना है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब कुछ सिखा दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज हम दुनियादार इंसान की नकल उतारने के लिए तो तैयार हैं, यानी दुनियादार इंसान के नक्शे कदम पे तो चल रहे हैं, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को जाया कर रहे हैं। याद रखें आप हजरात, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत में शिफा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर काम में हिकमत है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही थी, नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है। आप हजरात जानते हैं मदीने वाले आका अपनी इस उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं, तो सुनो, नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, उनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश हम भी बैठे मदीने के गलियों में, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है मदीना जाने की तो कहीं सुभान अल्लाह। काश हम भी बैठे मदीने की गलियों में, सुना है वहां जन्नत की हवा आती है। काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, सुना है वहां जन्नत की हवा आती है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जाते जाते आप हजरात से
यही कहूँगा कि जब तक दुनिया में रहो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करते रहो, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते रहो। अगर आप हज़रात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो मेरा दावा है कभी भी आप हज़रात खसारे में नहीं रहेंगे। इसलिए तो कहा दोस्तों खुल्द में घर बनाते चलो और सिलसिला मुस्तफ़ा से लगाते चलो और हर कठिन रास्ते से गुजर जाओगे। लब पे सल्ले अला गुनगुनाते चलो। और ए मुसलमानों, एक दिन ए मुसलमानों दुनिया पे छा जाओगे, कमली वाले से दिल को लगाते चलो। यानी जब तक दुनिया में रहो तो सबसे सच्ची मोहब्बत मदीने वाले आका से करते रहो। अगर मदीने वाले आका से सबसे ज्यादा मोहब्बत करोगे दुनिया में रहकर तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदीने वाले आका कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। जैसे कि साहिब खाना में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल को सजाया है। आप हज़रात इस बात को याद रखें, जब बंदा इस दुनिया से गुजर जाता है, जब कब्र के अंदर पहुंच जाता है तो इंसान बड़ा अफसोस करता है, काश के मैं दुनिया में रहकर फला इंसान के साथ जिंदगी न गुजारता, काश के मैं दुनिया में रहकर फला इंसान के साथ न रहता। मुझे आप बताएं, जब बंदा कब्र के अंदर पहुंच गया तो काश के करने से कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि कब्र के अंदर जब बंदा पहुंच जाता है फिर उसको दुनिया में आने का मौका नहीं मिला करता है। इसलिए मेरे अजीजों, दुनिया बड़ी इंपॉर्टेंट है और जिंदगी बड़ी कीमती है। जब तक दुनिया में रहो अल्लाह तबारक व तआला को राजी करते रहो। भूले हुए हैं लोग खुदा को, रसूल को, यानी कलामी पाक के सच्चे उसूल को, और हमको नहीं तमीज हलाल और हराम की नेमत समझ रहे हैं। गुनाहों की भूल को सजदों से दिल लगाओ, अभी वक्त है भाई, देगी ना काम हश्र में दुनिया की कमाई, और तौबा करो गुनाहों से उक़बा संभाल लो मैदाने महशर में। बहुत होगी रुसवाई जंजीर में अज़ाबों के, कसते चले गए दलदल में हम गुनाहों के, धंसते चले गए शैतान दाने आग हुआ, अपने जाल में हम लोग उसके जाल में फंसते चले गए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिस भाई की शादी है मौला ताला उस भाई की शादी में खूब खूब बरकत अता फरमाए। वो तमाम ही सुन्नी मुसलमान भाइयों को इसी तरह से अपने बच्चों की शादी को सुन्नत तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए। और शादी ब्याह में जो लोग नाजायज़ काम करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको महफूज फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैहि व सल्लम।